we will study the Vision IAS Current Affairs Quarterly Revision from March to May. And in this video, we'll do the polity section of the current affairs, focusing mainly on the prelims important facts. Let's begin. So for polity, we have around these 9 topics with some news and shorts, and in this I have written all the important articles here. So let us begin. The first is the caste census. So why it is in news? Because Center issued a notification for caste census which begin from 2026 in Ladakh and 2027 across rest of India. तो यहाँ से पहला MCQ बनेगा in Ladakh 2026 and 2027 rest of India. Then we move on. So the first census which occurred, it was in 1881. So first was in 1872, which was under Lord Mayo, but this was an unofficial census. So this was like the first official census, and it occurred under Lord Ripon. Okay, Lord Ripon. And thereafter, we are having census regularly, like every 10 years. Okay, so it is a decennial exercise. Okay, and the 2021 census, it was delayed due to COVID-19 pandemic, and so now it will occur in 2027 and 2026 in Ladakh. This is very important fact. Now, what are the legal provisions for this census? So we have entry 69 in the union list, 7 schedule, article 246. So अब इसमें what you can do is in Lakshmikant, उसके पीछे there is a list of all the articles which are important, right? So in those articles आप वहाँ पे जाइए लक्ष्मीकांत के पीछे जो articles दिए हैं, and जो भी articles आज हम इस वीडियो में we are covering, just underline those and you will know कि हाँ these articles are important, and after like जब आप उसको revise करेंगे so you will be knowing कि ये हमने current पे किया हुआ है. तो ऐसे करके you will link your static to the current. तो ऐसे करके वहाँ पे एंट्रीज दी हुई हैं अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. So just go there and mark entry 69 under union list and you will see it talks about the census. So यहाँ से MCQ बनेगा कि यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर आपको याद नहीं भी है, इट्स ओके, पर आपको ये बताना चाहिए कि इट्स इन यूनियन लिस्ट, राइट. एंड 7 शेड्यूल आपको पता ही है विच टॉक्स अबाउट लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, and article 256, and this is the exact language जो लक्ष्मीकांत में दी हुई है. I have written here कि distribution of legislative subjects between central and states. तो उसमें जो legislative subjects हैं उनको वो divide करता है, ये इसी के बारे में बात करता है 7 शेड्यूल. उसके बाद ये कुछ statutory provisions है, सेंसस एक्ट है ये, and ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इज ऑथराइज टू डिज़ाइन द सेंसस परफॉर्मा. ये एक फैक्ट है बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट. अब जो हिस्ट्री है सेंसस की, तो पहले प्री इंडिपेंडेंस में क्या होता था, कास्ट सेंसस वाज रेगुलरली कलेक्टेड, कास्ट डेटा, it was regularly collected and it couldn't be published during World War 941, not an important fact. Post independence, discontinued caste enumeration except for SC and ST. Again an MCQ pointer कि हमने क्या किया, SC कितना है, we used to count it, okay, STs ये, but the specific caste enumerations we didn't used to do, so that देश में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना हो. सो वी जस्ट से कि ओके दीज आर शेड्यूल्ड कास्ट बट नॉट सेपरेटली लाइक आइडेंटिफाइंग दोज कास्ट एंड देन एन्यूमरेटिंग, राइट. एंड सिंस 1961 ये भी कह दिया हमने कि जो स्टेट्स है ना वो ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनका भी कर ले. अब यहाँ पे MCQs फंसेंगे. नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस पे SC एंड ST का जो डेटा था वो पब्लिश होता था, बट आप बाकी कास्ट नहीं करते थे. बट जो OBCs हैं क्या उनका भी होता था? अब UPSC कहेंगे OBCs का भी डेटा पब्लिश होता था, तो नहीं होता था.
बट स्टेट्स जो हैं वो कर सकते हैं। अब 2011 में क्या हुआ कि एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, बट उसका डेटा हमने पब्लिश नहीं किया। ओके एक और चीज़, ये जो सेंसस है ना ये डिजिटली होगा, इट विल बी लाइक द फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ अ कंट्री। Then we move, and these are like some facts you can read on your own. And here I've written कि अभी हमें जो है वो क्या क्या we have learnt here कि 2026 लद्दाख, 2027 रेस्ट ऑफ इंडिया, जो फैक्ट्स आपको इस आर्टिकल में से याद करने। दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। आप यहीं पे लिख लो, या यू कैन राइट इट ऑन अ नोटबुक ऑन फॉर क्विक रिवीजन। एंट्री 69 यूनियन लिस्ट, अब ये आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भी पूछें। आर्टिकल 246, 340 क्या कहता है कि आप एक कमीशन बना लीजिए टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बीसीज और द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये कहता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करें उनके कंडीशन, तो वाई नॉट कंडक्ट कास्ट सेंसस, राइट? इट्स एज सिंपल एज इट। एंड ओबीसी या स्टेट्स कैन। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ असेंट टू द स्टेट बिल्स। अब क्या है कि ये जो तमिलनाडु एंड गवर्नर का कुछ लफड़ा इनका चलता रहता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं दोज आर इम्पॉर्टेंट। सो जस्ट क्रैम दिस आर्टिकल 142 asked a lot of times in PYQs, it's very important, enforcement of orders of सुप्रीम कोर्ट। क्या है कि आप जस्टिस डिलीवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल को इन्वोक करता है टू प्रोवाइड जस्टिस। एंड we no, and then the other provisions are article 200, bills reserved for governor the president, जो प्रेसिडेंट के लिए जो बिल्स रिजर्व करता है गवर्नर, आर्टिकल 201। सो पहले इस एक्ट इस बिल के नीचे आप 4 आर्टिकल्स उनको याद कर लो, 42, 143, 200 एंड 201। 142 कंप्लीट जस्टिस वाला। 143 इज व्हेन प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन सब मैटर्स जो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं। एंड देन 200 इज फॉर द गवर्नर का जो असेंट टू बिल्स है, एंड जो रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट है वो 201 है। एंड अगेन यू हैव टू मार्क दीज आर्टिकल्स, वो लक्ष्मीकांत के पीछे जो आर्टिकल्स की लिस्ट है उस पर। अब यहाँ पे कि गवर्नर जो है वो असेंट दे सकता है, विद होल्ड कर सकता है, रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन कर सकता है वो, बट मनी बिल्स में वो नहीं कर सकता। बेसिक टर्म्स, रिकन्सिडर्ड बिल पे उसको एक्सेंट देना पड़ेगा, या फिर वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेगा। प्रेसिडेंट एसेंट दे सकता है, उसको विदहोल्ड कर सकता है, रिकन्सिडरेशन के लिए दे सकता है। बट नाउ जो एमसीक्यू बन सकता है क्या है ना कि मस्ट हैव विद इन 6 मंथ्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यार 6 मंथ्स ना आप करो, एंड रिकन्सिडरेशन के बाद प्रेसिडेंट कैन स्टिल एक्सेप्ट और रिजेक्ट। देखो, रिकन्सिडरेशन में जो गवर्नर है उसको मस्ट गिव, बट प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। फिर से सोचो, दिस इज बिल, ठीक है, ये पास हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर से पास किया। ओके अब गवर्नर के पास जब ये आया, गवर्नर कैन गिव एक्सेंट और नॉट गिव, या इट्स टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन। दोबारा आया, अब गवर्नर सिर्फ ये ऑप्शन है, गवर्नर के पास अब सिर्फ ये ऑप्शन है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास आया बिल, इट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। बट अगर प्रेसिडेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया एंड अब वो दोबारा आया, अब प्रेसिडेंट के पास ये और ये अगैन प्रेसिडेंट के पास ये और ये दोनों प्रोविजंस होंगे, बट गवर्नर के पास रिकन्सिडर बिल को सिर्फ असेंट देने का ही प्रोविजन होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देयर इज़ नो पॉकेट और एब्सोल्यूट वीटो अवेलेबल इन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, कि ऐसा नहीं है कि आपने बस बिल रख लिया अपने पास एंड देन यू जस्ट नॉट डूइंग एनी एक्शन ऑन इट। इस पे एमसीक्यू बनेगा। इसके बाद एक, अगर गवर्नर ऐसा करता है तो रिट ऑफ मैंडेमस जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट कुड सीक। रिट ऑफ मैंडेमस, ये रिट्स यू शुड लर्न in the chapter of fundamental rights,
Article 32 constitutional remedies. Okay, governor can't reserve a reenacted bill for president's assent, ये हमें पता है. बट अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एंड जहाँ एक्सेप्शन है वी हैव टू लर्न इट. When the bill is present, the second round is materially different from that in the first instance. अब बिल ही बदल चुका, वो रहा ही नहीं, तो फिर जो है वो गवर्नर कैन डू. अब these are the timelines, very 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 important, so just learn them. So क्या होता है कि टाइमलाइन जो सेट बाय सुप्रीम कोर्ट है, यू कैन रीड इट योर सेल्फ, बट आई कैन मेक यू लर्न मोर इजीली. 1 महीने का जो टाइम है वो मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे. आप उस पर गिव या विद होल्ड असेंट, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, या जो अगर रिकन्सिडर्ड हुआ तो उस पर तो देना पड़ेगा. तो ये 1 मंथ की ना टाइमलाइन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने. 3 मंथ्स की टाइमलाइन दे दी अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस. अगर आपने नहीं किया तो या तो आपने रिकन्सिडरेशन के लिए दे दिया या आपने प्रेजेंट के लिए रख लिया रिजर्व करके. अब प्रेसिडेंट जो है ना, इट मस्ट डिसाइड ऑन द रिजर्व बिल्स. एनी डिले टू बी जस्टिफाइड एंड कम्युनिकेटेड टू द स्टेट्स. ओके, ये इसके लिए अब 3 मंथ्स टाइमलाइन है अगेंस्ट एडवाइस, एंड 1 मंथ टाइम है विद एडवाइस, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस दे दी. दिस टाइमलाइंस यू शुड लर्न. And these are the articles 200, 201, 142, 143 timelines and discretion की कहाँ डिस्क्रिशन है गवर्नर के पास, कहाँ प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है, कहाँ नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी तो एक लिस्ट बना लीजिए सब डिस्क्रिशंस की. स्पीकर के पास कौन से डिस्क्रिशनरी, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर्स यूपीएससी को बहुत मज़ा आता है पूछने में. एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है कि गवर्नर लैक्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन आर्टिकल 200 एंड हैज़ टू मैंडेटरी अबाइड बाय द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. देखो, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो गवर्नर के पास यहाँ पे डिस्क्रिशन आ जाता है, राइट. एक्सेप्ट है ना. फिर अगर कोई बिल it lowers the powers of the High Court, then that bill cannot become effective without the assent of President. And the discretionary power is subject to judicial review. यहाँ again एक MCQ बन सकता है कि is it subject to judicial review or not? It is subject to judicial review. And President should consult Supreme Court on bills reserved for unconstitutionality, Article 143, which I told you. Okay. So this is something about this assent to bills which we have to learn. Basically these 4 articles we have to learn. We have to learn the timelines, that 1 month, 3 month, and we have to learn the discretion. We have to learn this exceptions in the discretionary powers, concurrent list wali, high court wali, MCQs, and this is all about this. अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राइवेट मेंबर्स बिल. अब ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम के लिए भी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, प्रीलिम के लिए इसमें कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर एक प्राइवेट मेंबर पहले तो कौन है, मिनिस्टर नहीं है वो. जैसे ये लोकसभा है, इसमें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं COM, एंड यहाँ पे हमारे होते हैं MPs. तो वो एक MP है पर वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर नहीं है. मतलब उसको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया कि जैसे डिफेंस का, होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ लाइक रेवेन्यू, फाइनेंस, ये सब ऐसा नहीं है वो. ही इज़ जस्ट अ प्राइवेट मेंबर, जस्ट एन MP, राइट. 1 मंथ नोटिस शुड बी गिवन. अब यूपीएससी कहेगा 2 मंथ नोटिस, 3 मंथ नोटिस, 14 डेज नोटिस, तो इसको रट लो 1 मंथ नोटिस. टू बी गिवन टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर. कौन हो सकता है, स्पीकर होगा लोकसभा में. वाइस प्रेसिडेंट, या हम उसको चेयरमैन बोलते हैं, वो होगा इन राज्यसभा में. ठीक है, उसको यू हैव टू गिव. अब सुप्रीम कोर्ट लॉस लास्ट, अब ये लास्ट वर्ड भी याद रखना, लास्ट. ओके, लास्ट 2.5 आवर्स एवरी फ्राइडे है, एंड देन लास्ट के 2.5 आवर्स हैं. एंड जो राज्यसभा, इसमें देखो लास्ट वर्ड नहीं है, इसमें सिर्फ है 2.5 आवर्स ऑन एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे. ये फ्राइडे आया, फिर अगला फ्राइडे स्किप कर दो, फिर उससे अगला फ्राइडे आया, तो ये राज्यसभा का है. ये फ्राइडे, ये फ्राइडे,
ये फ्राइडे, तीनों में लोकसभा क्या देगा, 2.5 आवर्स देगा प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए। अब ये प्राइवेट मेंबर बिल के कुछ सिग्निफिकेंस है, यू कैन लर्न इट लाइक फॉर मेंस, यू कैन रीड इट, बट यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, सो हम बस एक चीज़ याद करेंगे कि जो फर्स्ट सच बिल है इट वाज पास्ड इन 1952। अब यूपीएससी पूछ लेगा कि नेवर अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड या इट हैज़ बीन पास्ड इन 2000, तो याद कर लीजिए कि फर्स्ट वाला 1952 में एंड लास्ट वाला 1970 में है जो पास हुआ था। ओके, सी द लास्ट बिल वाज पास इन 1970, तो ये यू शुड लर्न। एंड अब इसमें अगेन सी स्पीकर चेयरमैन हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर टू एडमिट और रिजेक्ट बिल्स, जिसमें ना डिस्क्रिशनरी पावर्स याद कर लीजिए, स्पीकर के डिस्क्रिशनरी पावर्स, गवर्नर के, प्रेसिडेंट के, विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब वी मूव ऑन टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये मेंस का टॉपिक है, हम क्या करें, हम प्रीलिम्स फैक करें क्योंकि मेंस की तैयारी होगी प्रीलिम्स के बाद, तो प्रीलिम्स अभी क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर इन लाइक मिडल ऑफ अक्टूबर, सो अभी करंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 50 बोलता है बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव सेपरेशन ऑफ पावर्स बताता है हमें, ठीक है, ये इतना आप याद कर लीजिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट, ये मेंस के लिए, प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद पढ़ लेंगे, अभी भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। स्टेट्स डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, अब क्या है ना कि तमिलनाडु ने बोला कि यार क्या हुआ था, जो कुछ सब्जेक्ट्स थे ना स्टेट लिस्ट के वो सेंटर ने कॉन्करेंट में डाल दिए थे। अब उसने बोला कि आप ना इसको देखिए कि क्या आप कुछ वे सजेस्ट कर सकते हैं जिससे हम स्टेट लिस्ट जो कॉन्करेंट हैं, कॉन्करेंट में गई हैं चीज़ें, उनको हम रीस्टोर कर सकें, यानी कॉन्करेंट से वापस हम स्टेट लिस्ट में लेके आ सकें, जिससे स्टेट की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, स्टेट पावर जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, कि उनको उनको थोड़े ज़्यादा सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स विद नो राइट टू सेसीड फॉर द स्टेट्स फ्रॉम द यूनियन, अब क्या है कि आप ये जैसे यूएस एक फेडरेशन है ना, इंडिया एक यूनियन है, यहाँ में आप जैसे जेके है उसको आप यूटी बना सकते हैं, लद्दाख उसमें से आप अलग कर दिया लद्दाख को, है ना, लद्दाख को यूटी बना दिया, अब इसको आप स्टेट भी दोबारा बना सकते हैं, स्टेटहुड दे सकते हैं। तो क्या है ना कि इनडिस्ट्रक्टेबल है यूनियन, मतलब ये जो इंडिया का मैप है ना ये वाला, ये एज इट इज़ ही रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। अब इसके अंदर आप इसको बड़ा कर दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना बन गया, जो भी है, तो डिस्ट्रक्टेबल है हमारी स्टेट्स। अब आगे गए हम, ये मतलब मीन्स की चीज़ें हैं तो पढ़ लेना जब मन करे। अब हमें प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल पढ़ने, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, पता ही चल रहा है कि इंटर स्टेट काउंसिल है कि ये एक स्टेट है ए, ये एक स्टेट है बी, एंड इनके अंदर कोऑर्डिनेशन करेगा ना, यहाँ पे एक सेंटर बैठा है हमारा, तो सेंटर एंड स्टेट्स। अब यहाँ पे बेसिक कह सकते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल ओनली बिटवीन लाइक बिटवीन स्टेट्स, है ना, ऐसा नहीं है, सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट्स, ओके। अब टैक्स डिवोल्यूशन इंक्रीज, अब ये 14 फाइनेंस, अब बोल देगा 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा ये, तो फाइनेंस कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी रिपोर्ट, इसकी रिकमेंडेशन देखो, 25 प्रीलिम्स में भी इस पे सवाल आया था फाइनेंस कमीशन पे। सो सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है ना स्टेट्स का, वो 32 से सीधा 10% का जंप दिया। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, ये दो आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड एज यू नो 73rd 74th अमेंडमेंट्स, पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज। देन वी हैव द सरकारिया कमीशन 1983 के रिकमेंडेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है सरकारिया कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करती है, बोल रही है कि आप जितनी भी रेजिडुअरी पावर्स है ना टैक्सेशन को छोड़ दीजिए एंड कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दीजिए। रेजिडुअरी पावर्स जो होती हैं वो यूनियन के पास होती हैं, वो बोलता है कि यार ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में दे दीजिए आप, एंड यूनियन जो है ना वो स्टेट को कंसल्ट करें लेजिस्लेट करने के लिए कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे, कि यूनियन अपनी मर्जी से कॉन्करेंट लिस्ट पे जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे लेजिस्लेट ना करें, दे शुड कंसल्ट द स्टेट्स। एंड देन एक पंची कमीशन आया था 2007 में, उन्होंने बोला कि आप जो फाइनेंशियल ट्रांसफर्स हैं अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में दीजिए, फिजिकल ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंक्रीज़ कीजिए,
देन एक उसने बोला कि आप इंटर स्टेट जो काउंसिल है ना, उसको आप कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल स्टेट कंसल्टेशंस के लिए यूज़ कीजिए। बोला वेंकटाचार्य कमीशन ने, ये एक न्यू कमीशन है, तो यू शुड लर्न अबाउट इट। वैसे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सरकारिया कमीशन ना एंड पंची कमीशन, ये लक्ष्मीकांत में भी दी हुई है। देन यू मूव टू द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, अगर जुडिशरी को हम बोलते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को, अब जुडिशरी में ही अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा, है ना। सो इसकी इम्पीचमेंट आर्टिकल 124 ये एससी से रिलेटेड है एंड ये दोनों एचसी से रिलेटेड है, ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए। एंड एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है, इस पर PYQ भी आ चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत से जो आपको पढ़ना है वो है ये चीज़ें, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, हाई कोर्ट के कैसे रिमूव होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, इसमें जो भी फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ही। अभी करंट में हमें क्या पढ़ना है, इन हाउस मैकेनिज्म है, ठीक है। ये है, आप एक अलग से बाहर से एक कमेटी बना दीजिए जो इन्वेस्टिगेट करे कि क्या जो जजेस हैं उनका जो कॉन्डक्ट है वो कैसा है, एंड देन वो एक ना रिपोर्ट सबमिट करे रिमूवल के लिए या क्रिमिनल एक्शन के लिए, जैसे अभी एक जज के साथ ये किया गया था। अब ये प्रोविजंस है इन हाउस कमेटी के, इसको रटना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स इसको याद करने की कोशिश करते हैं। हाई कोर्ट के जज के लिए चीफ जस्टिस होंगे 2 हाई कोर्ट के, एंड एक हाई कोर्ट, मतलब जिस हाई कोर्ट में जज है उसका नहीं, किसी और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होंगे एंड एक हाई कोर्ट का जज होगा। मतलब जो हाई कोर्ट का जज है उसको रिमूव करने के लिए 2 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के एंड 1 HC जज। अब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आ गया, तो इसमें आप क्या कर लीजिए, आप एक जज सुप्रीम कोर्ट का डाल दीजिए एंड 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये सेम रहने दीजिए। फिर आ गया सुप्रीम कोर्ट का जज, तो उसमें आप तीनों जज ही सुप्रीम कोर्ट में डाल दीजिए। इसको एक टेबल बना के भी हम अच्छे से याद कर सकते हैं थोड़ा, कि जैसे इसको एक टेबल बना के हम अच्छे से याद कर लेते हैं कि अगर आपको रिमूव करना है, जज ऑफ हाई कोर्ट का जज आपको रिमूव करना है, तो आप जो CGI हैं एंड ये हैं सिंपल जज, तो CGI आप 2 ले लीजिए हाई कोर्ट के एंड 1 ले लीजिए जज हाई कोर्ट का। अब आपको सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज निकालना है, तो आप तीनों ही जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ले लीजिए। अब आपको CGI निकालना है हाई कोर्ट का, तो आप ले लीजिए 2 हाई कोर्ट के CGI एंड 1 SC का जज ले लीजिए, ठीक है। चीफ जस्टिस में निकालना है तो 1 SC का जज ले लीजिए आप। ऐसे करके ये टेबल बना के यू कैन ईजीली रिमेंबर, अपने हिसाब से यू कैन मेक अ टेबल जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इसको याद कर लेना चाहिए। ये जो स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ NJAC हुआ था, दिस इम्पॉर्टेंट एंड इसको आप कर लीजिए। NJAC कोलिजियम जो भी ये हुआ था, ये जब लक्ष्मीकांत का चैप्टर आएगा जिसमें 3 जजेस केसेस NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था। अच्छा, अब एक रिकमेंडेशन आई थी कि आप ना नेशनल जुडिशियल कमीशन बना दीजिए जिसमें जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल दोनों मेंबर्स हो जाएं, एंड ये लॉ कमीशन की 80th एंड 121st रिपोर्ट ने ये चीज़ जो है वो कही थी। इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब इतना भी नहीं बट हाँ पता होना चाहिए आपको। उसके बाद 5 years ऑफ स्वामित्व स्कीम। अब कोई भी स्कीम की जो भी एनिवर्सरी होती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न, तो 5 साल इसने कंप्लीट किया। अब इसका नाम क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो नाम ही बता रहा है कि सर्वे करेगा, मैप करेगा, इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी से करेगा। 2021 में लॉन्च हुई थी, तभी 5 साल हुए। अब इसको जो है इम्प्लीमेंट करती हैं 4 चीज़ें, ये आप याद कर लीजिए। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब 2 चीज़ें इंडिया की हैं, एक तो मिनिस्ट्री, एक सर्वे ऑफ इंडिया, एंड देन स्टेट का एक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड एक पंचायती राज डिपार्टमेंट, ठीक है, ईजी है।
उसके बाद इसमें अब ये वर्ड है जैसे कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस, इनको इस्टेब्लिश किया जाता है फॉर लैंड डिमार्केशन, यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा। ग्राम मानचित्र, ड्रोन सर्विस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए जो है ये एनालिटिकल टूल्स हैं। ये चीज़ आप पढ़ लीजिए, एमसीक्यू में बता देगा कि स्वामित्व स्कीम से ये रिलेटेड हैं, या मैच द फॉलोइंग में कि ये किस स्कीम से रिलेटेड हैं। ये एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स देता है, सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर जीआईएस मैप्स बताता है डिपार्टमेंटल यूज़ के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स डिटर्मिनेशन फॉर ग्राम पंचायत और द स्टेट एक्सचेकर, ये थोड़ा सा मतलब है इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप पढ़ सकते हैं। देन financial stability by allowing citizens to use property as a financial asset, you know, and then better quality gram panchayat development using GIS maps. अच्छा, अब एक और चीज़ जो इसके सिग्निफिकेंस है, ये क्या है कि आप इसके थ्रू जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं ये इशू हुए हैं। प्रॉपर्टी कार्ड्स मतलब इस पर एमसीक्यू बन सकता है कि ये प्रॉपर्टी कार्ड्स की स्कीम के अंदर स्वामित्व स्कीम। अब ये एक वैल्यूएबल कलेक्ट्रल है, अगर आपको लोन चाहिए तो आप अपने प्रॉपर्टी कार्ड्स को गिरवी रख के यू कैन जस्ट गेट अ लोन। अब एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा कि स्वामित्व स्कीम हैज़ 100% completion ऑफ ड्रोन्स इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया इन मोर देन लाइक 10 स्टेट्स। अब कुछ लोग ना ट्रिक बताते हैं कि जहाँ पे यूपीएससी मोर देन बोले वो तो सही होगा, पर अब यहाँ पे हमें पता है कि हरियाणा उत्तराखंड मतलब 2 स्टेट्स में 100% कम्प्लीशन होगा, तो अगर वो मोर देन 10 भी बोल देगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसीलिए स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए प्रीलिम्स नहीं हो रहा है क्लियर, क्योंकि हम तुक्केबाजियाँ, शॉर्टकट, इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें करने की बजाय। खैर आई शुड नॉट गो इन टू दीज डिस्कशंस वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मैंने सोचा था इन 30 मिनट्स वी विल वाइंड दिस अप, बट कोई बात नहीं, फ्रूटफुल होना चाहिए, आप 2x पे भी सुन सकते हैं। अब बिग टेक को रेगुलेट करने के लिए ये देखिए, ये चीज़ें ना, ये चीज़ें पढ़ाने बैठ जाऊँ वीडियो लंबा हो जाएगा, फ़ायदा क्या है। पूछेगा प्रीलिम्स में, नहीं मीन्स की चीज़ें पढ़ना है तो पढ़ लीजिए अपनी आत्मिक शांति संतुष्टि के लिए। खैर, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है उसने क्या किया, उसने डिजिटल कंपटीशन लॉ कमेटी की रिपोर्ट पे ना फीडबैक मांगा। तो उसने कंपटीशन एक्ट जो 2000 है, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो आपको ना याद कर लेनी चाहिए फॉर यूपीएससी, जैसे आरटीआई एक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाला, फिर ये कंपटीशन एक्ट, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिर वी हैव दिस आईटी एक्ट, आरटीआई एक्ट, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीडीपीए। इससे अलग जो इन्वायरमेंट के एक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंट में, फिर ये पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सिक्योरिटी में, ठीक है। मतलब ये कुछ एक्ट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई ट्राई टू मेक वीडियो वेरी सून ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट एक्ट्स। खैर, वाई बिग टेक नीड्स रेगुलेशन, क्यों रेगुलेशन चाहिए, ये आप खुद नहीं पढ़ सकते क्या, या मुझे बताना पड़ेगा? नहीं ना, खुद पढ़ लीजिए, बहुत ही फालतू चीज़ें। ओके, चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग बिग टेक। अब एमसीक्यू कहाँ से बनेगा, एक्स पोस्ट मॉडल, Competition Act 2002 regulatory vacuum. The Competition Act 2002 works on ex post acting after anti-competitive behavior. ये अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बोल रहा है कि अगर आपने एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर शो किया उसके बाद ये एक्ट आप पे लागू होता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एक जो है वो वैक्यूम है इसकी बिग टेक कंपनीज की रेगुलेशन में, कि ये उनको डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर पा रही है कंपटीशन जो एक्ट है। फिर ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 है, इन्फोर्स नहीं हुआ अभी, इट इज़ येट टू बी इन्फोर्स, सिमिलरली लाइक द 4 लेबर कोड्स अभी भी वही पुराने चल रहे हैं। अब देखो, ये श्रेया सिंगल जजमेंट, सिर्फ प्री इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे अब यहाँ पे। एम्बिग्यूटी ऑफ लॉ, अब मैं ये पॉइंट क्यों बता रही हूँ, सी एक्स जिसे ट्विटर कहते थे पहले, उन्होंने बोला कि हम ना
सेक्शन जो 79(3)(b है, ये IT एक्ट का सेक्शन है जो बोलता है कि ना अगर आप एक इंटरमीडियरी हैं, जैसे एक्स एक इंटरमीडियरी है एंड इस पे यूज़र्स हैं, ठीक है, अब यूज़र्स कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो ये जो एक्स है ना, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पोस्टिंग। और ये 69 ये बोलता है कि अगर कुछ भी वायलेट करता है, जैसे ये गवर्नमेंट कैन ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट, अगर वो 19(2) आर्टिकल को वायलेट करता है तो आप वो इन कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑर्डर जो एक्स ने चैलेंज कर दिया इस बेसिस पे कि हम ना नहीं करेंगे ये चीज़ रिमूव, क्योंकि ये हम इंटरमीडियरी हैं एंड ये यूज़र का कंटेंट है। अब शरिया सिंगल स्टेटमेंट जो आई उसमें बोला सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसने बोला कि यार ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, एंड जो आर्टिकल 19(1) है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको बहुत ज़्यादा ये उसके अगेंस्ट है, एंड इसलिए इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया आर्टिकल 66A को इन श्रेया सिंगल जजमेंट। इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है ये। उसके बाद IT रूल्स हैं, ये आपको पढ़ लेने चाहिए मेंस के लिए भी, ये एक्ट आपको पढ़ लेना चाहिए। नो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, इसमें मेंस में क्वेश्चन आता है UPSC में, तो मेंस की चीज़ें ये यू शुड लर्न अबाउट दीज। एंड ये अब ये UPSC पूछ सकता है कि ये जो GDPR है ये किसका, यूरोपियन यूनियन, वैसे भी आजकल UPSC का ऑब्सेशन हो चुका है इसके लिए। अब ये सब कर लेंगे। ये यहाँ फंस सकते हैं कि डिजिटल मार्केट एक्ट है ना जो, ये भी यूरोपियन यूनियन का है, बोल देगा ये इंडिया का है, ये UN का है। नहीं, अब हमने पढ़ लिया है कि ये है यूरोपियन यूनियन का। Okay, with this we have finished all the important prelims fact, and now we'll go to the news in shorts, which is really very short, and in 5 minutes we'll wind this up, or max 10 minutes. Okay, digital access is a फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्राइवेसी देता है। 20 आई थिंक बहुत बार पूछा यूपीएससी ने, 2024 प्रीलिम्स में भी पूछ लिया। ओके, अब ये अनुराधा भसीन वर्सिंग यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि इंटरनेट एक्सेस ने एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। अब क्या होगा ना, हमें लगेगा यार सब कुछ ही तो आर्टिकल जो है वो 21 के अंडर आता है, ये भी आर्टिकल 21 के अंडर होगा, बट ये याद कर लीजिए आर्टिकल 19 के अंदर ये पाया जाता। अब ये जो सोशल जस्टिस प्रमोट करते हैं वो आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 38 है। ये यू शुड लर्न कि आपको आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेगा अगर आप इसको रट लेंगे ना। 14, 15, 21, 38, 14, 15, 21, 38, तो जहाँ भी सोशल जस्टिस की बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में ये 4 आप लिख दीजिए। देन यू गो टू राइट ऑफ पेडेस्ट्रियंस, तो आर्टिकल 21 अगेन राइट ऑफ पेडेस्ट्रियंस, डिजिटल एक्सेस, कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, यू शुड लर्न। अब डेप्यूटी स्पीकर, देखिए ये भी UPSC की आदत है कि जो जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 कि ये ऑफिस ऑफ स्पीकर कहाँ ओरिजिनेट हुआ, ऑफिस ऑफ डेप्टी स्पीकर कहाँ, तो वी शुड लर्न कि ऑफिस ऑफ जो डेप्टी स्पीकर है इट ओरिजिनेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। सचिंदर सिन्हा वॉज द फर्स्ट एंड M.A. Iyengar वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, जैसे ये सचिंदर सिन्हा पे देखा 2024 में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ गया था, तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो। UPSC ऑब्सेशन है उसका इस चैप्टर पे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पहला चैप्टर है जिसमें ऑल दीज एक्ट्स आर गिवन, शुड लर्न। उसके बाद इलेक्शन, आर्टिकल 93 इंपॉर्टेंट है। अब लॉन्ग स्टैंडिंग कन्वेंशन है कि आप ऑपोजिशन का बंदा जो है वो, अगर जैसे BJP का बंदा है स्पीकर, जैसे ओम बिरला सर हैं, तो जो कांग्रेस का बंदा होगा वो आप डिप्टी स्पीकर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल ये है कि आप जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर देता है, मतलब इट्स अ वाइस वर्सा प्रोसेस। आर्टिकल 94 ये चीज़ बोलता है, एंड आर्टिकल 95 बोलता है कि ये स्पीकर की एब्सेंस में उसके पावर्स परफॉर्म करते हैं। जैसे M.A. Iyengar जो थे वो स्पीकर बन गए थे सडनली आफ्टर जब G.V. मावलंकर जी की डेथ हो गई थी। एंड आफ्टर दिस वी गो टू द डिफेक्शन। अब देखो डिफेक्शन जो है ना, अगर अगर जो स्पीकर है वो अपने इस डिफेक्शन का लाइक डिले कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है इस प्रोविज़न का, तो आर्टिकल 142 आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, जो जस्टिस देता है। जहाँ भी जस्टिस नहीं मिल रही तो ऐसे ही बोलता है लाओ मैं आता हूँ देने। एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985
10th शेड्यूल याद कर लीजिए। उसके बाद ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। इसमें बोलते हैं कि आप पार्टी लाइंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये वो फालतू चीज़ है। ओके, डेडिकेटेड सेल्फ ऑफ मर्सी पिटिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिक्वेस्ट की थी, आप एक मर्सी पिटिशन के लिए जो स्टेट्स हैं वो एक एक डायरेक्टिव था सुप्रीम कोर्ट का कि आप वो बना लीजिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेजेंट। लक्ष्मीकांत की स्टैटिक चीज़ें, आर्टिकल 72, आर्टिकल 161 गवर्नर को देता है पार्डनिंग पावर्स। ये वर्ड्स पार्डन, रिस्पाइड, रिप्राइव, रेमिट, कम्यूट, इन सब का मीनिंग यू शुड बी नोइंग। एंड यहाँ से MCQ बनेगा। अब मैं यहाँ पे बताने बैठ जाऊँगी तो फिर वक्त बर्बाद होगा। ये आपने लक्ष्मीकांत ने चीज़ें पढ़ रखी हैं, पॉलिटी के टीचर्स इनको पढ़ाते हैं। करंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 72 न्यूज़ में है, 161 न्यूज़ में है। एंड मारूराम केस में 1980 में गवर्नमेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट एडवाइस इज़ मैंडेटरी। आप ये पार्डनिंग पावर्स को एज अ डिस्क्रिशनरी पावर नहीं यूज़ कर सकते। अब ये जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है जो लाइक आउट ऑफ कोर्ट होता है, कि एक तो कोर्ट है जैसे हमारी HC है, SC है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाहर एक आपने एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बना दिया। उसके कुछ जैसे मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, ये सब कुछ चीज़ें होते हैं। ये मेंस के लिए आप पढ़ते हैं, इनको आप इसका एक टेबल बना के पढ़ लीजिए, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एंड ये आप याद कर लीजिए। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है वो सी अगेन कंप्लीट जस्टिस की बात आ गई तो 140 आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करके वो आर्बिट्रल अफॉर्ड्स में इंटरफेयर कर सकता है कोर्ट, बट इट ट्राइज टू अवॉइड। बट अगर ज़रूरी है जस्टिस देना, 142 की बात है तो करेगा। अब वी हैव द प्रोविजन रिलेटेड टू रोहिंग्या। सब MCQ क्या बनेगा कि इंडिया हैज़ नो डेडिकेटेड रिफ्यूजी लेजिस्लेशन। बोल देगा इंडिया हैज़ अ रिफ्यूजी लेजिस्लेशन इन फॉरेनर्स एक्ट, ये वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, रट लो, नहीं है। India has no dedicated refugee legislation. India is not a signatory to the 1951 Refugee Convention or the 1967 Protocol. It's very important. Foreigners Act versus सेंट्रल गवर्नमेंट। अब UPSC आता है, स्टेट को सेंटर कर देगा, सेंटर को स्टेट कर देगा। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास एक पावर्स है कि आप डिटेन या डिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें अगेन सेंटर, क्योंकि देखो ना सेंटर के पास ही पावर्स होंगी, पर क्या स्टेट के पास बिल्कुल ही नहीं है पावर्स? हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है, एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 258(1), 239(1) ये स्टेट्स को भी पावर देता है कि आप ना ये सब कर सकते हैं, डिटेन, डिपोर्ट वगैरह। अब ये इमिग्रेशन ऑफ फॉरेनर्स बिल है, इसने क्या किया, ये सारे जो बिल्स हैं, पासपोर्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, ये सबको ख़त्म कर दिया। ये इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट, ठीक है, 5 years का फाइन, 5 lakhs, ये सब। एंड हेड कांस्टेबल के नीचे रैंक का बंदा नहीं अरेस्ट कर सकता विदाउट अ वारंट। एंड अब आप कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिपोर्ट जो है वो आई। स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिपोर्ट। अब इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया एंड कुछ रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जो बजट एस्टीमेट है वो लोअर है रिवाइज एस्टीमेट के, तो इंश्योर किया जाए कि स्टेट्स दे सबमिट देयर डिमांड फंड्स ऑन टाइम, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में लैग है तो आप इसको जल्दी कीजिए। फिर मैन पावर की शॉर्टेज है उसको इंक्रीज़ कीजिए। थोड़े मेन्स वर्दी पॉइंट्स हैं यहाँ। इंपॉर्टेंट है कि जो टाइड ग्रांट्स 60% है एंड रिस्ट्रिक्टेड अनटाइड ग्रांट्स ऑफ 40%, इनका डिफरेंस यू शुड बी नोइंग, टाइड एंड अनटाइड ग्रांट्स। ओके, मर्ज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइड एंड अनटाइड। तो रिकमेंडेशन बोलते हैं आप इसको मर्ज ही कर दीजिए, आप अलग अलग टाइड अनटाइड क्यों रखें। ये जैसे जो टाइड ग्रांट्स होते हैं इनको आप जैसे सैनिटेशन, ऐसे कुछ स्पेसिफिक पर्पसेज उनके लिए आप यूज़ करते हैं। यू शुड लर्न दिस एंड ये आप टाइमली कीजिए। जो ग्रांट्स पे पंचायत से रिलायबल, तो उनको कुछ ओन रेवेन्यू जैसे प्रॉपर्टी टैक्सेस से वो इस रेवेन्यू को है वो ले सकते हैं। एंड वी हैव द 50th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम स्टेटहुड। 36th अमेंडमेंट एक्ट से जो सिक्किम है इट बिकेम अ स्टेट ऑफ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडिया। एंड इसको पहले हमने एसोसिएट स्टेटस दिया था, स्टेटस 36th अमेंडमेंट में, बट 35th में, एंड देन 36 में वी मेड इट अ कंप्लीट स्टेट and it became the 22nd state of India. Okay, 371F grants special provisions to Sikkim. So this is all about polity and अब हम वहाँ पे आते हैं अपने इंडेक्स पे जहाँ we wrote all the important articles. ऐसे you should mark your
PDF. सी कास्ट सेंसस में हमने पढ़ा आर्टिकल 246, 340 ये बोलता है कमीशन अपॉइंट कीजिए, एंड जो 246 है वो बोलता है कि जो भी लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड करता है 7 शेड्यूल के, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 142 कंप्लीट जस्टिस, 143 प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस लेगा, 200 गवर्नर्स एक्ट टू बिल 201 रिकन्सिडरेशन, बिल रिजर्व फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स 50, ये जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करता है। स्टेट डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, इसमें 263 आता है इंटरस्टेट काउंसिल एंड 279 आता है GST काउंसिल। एंड सरकारी कमीशन बोलता है, पंची कमीशन बोलता है कि आप इंटरस्टेट काउंसिल को वेंकट चालिया कमीशन बोलता है कि आप इंटरस्टेट काउंसिल को यूज़ कीजिए। एंड सरकारी कमीशन बोलता है कि आप स्टेट के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दीजिए, रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो आप दे दीजिए रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। उसके बाद एक्सेप्ट टैक्सेशंस जो है ना वो आप रहने दीजिए यूनियन के पास। उसके बाद बोलता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी 124 217 to 18 ये आर्टिकल, ये आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है। इसमें IT एक्ट के 66 केस, रेयर सिंगल केस। 69 जो है वो मतलब 19(2) की वायलेशन के अगेंस्ट है, एंड 79 को एक्स ने यूज़ किया, तो 79 3B आर्टिकल ऑफ IT एक्ट। देन ये 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें पेडेस्ट्रियंस का राइट है, डिजिटल एक्सेस का जाता है। देन 93 डेप्टी स्पीकर, 94 ठीक है ये भी डेप्टी स्पीकर 93 94। देन ये जो है ये आ जाता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। 258(1), 239(1) ये बोलता है कि स्टेट्स के पास भी वो डिपोर्ट करने की, रिफ्यूजीज को एंड डिटेन करने की वो सब पावर्स हैं। तो ऐसे करके वी डू। ओके, अब शुड वी डू दीज MCQs जो यहाँ पे आए हुए हैं, पीछे कुछ MCQs हैं, ये टेस्ट योर लर्निंग, ये आई थिंक यू शुड डू it on your own, shouldn't be doing this. Okay, so thank you everyone, we had a great lesson and काफ़ी लंबा चला गया because I tried to tell many extra things, and if you like it then you can like the video and comment. This is my first video and I'll try to make it for all the current affairs so that current affairs are sorted before December so that we don't have to wait for the PTs, right? Take care, good luck, bye.